Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here I am back with another episode of In Conversation with Suhail Zindani. And I've been telling you this is not about Suhail Zindani. This is about all those amazing people who I have in my life. I'm blessed to have them around me. And I think these are those amazing people we all can learn so much from them. And today we have somebody Today we have somebody who is a massive influencer, somebody who people look up to, not just as what trainer winner, who cares, dafa karo. People look up to him as sign of hope. And that's what the topic is today. We are talking about hope and optimism, and who can be a better speaker on the subject than my guest, Kaisar Abbas. Kaisar, welcome to the show. Thank you, Sohail. I've been looking forward to this and I'm so excited that we've finally been able to take time out to have this conversation. Wow, this I think is wonderful, and I am sure कि हमारे listeners जो हैं, they will also hopefully get something extremely amazing out of it. Kaisar, let's get to the business. And here's my first question to you, because as we said, talking is Can I say something about sure. your show? I think your show is very unique in a way. I've been able to watch a couple of episodes. मैंने फरहाद की और तुम्हारी conversation को बहुत वजह से सुना. What I liked about it is like going to your show. I've been to so many shows, TV Shivi baby. So your show is different. It's not like going to a dentist. जिसमें वो कहता है कि open your mouth, and you don't have a choice. And in return, you cannot say to the dentist, no, please open your mouth as well. So what I observed is that your show is so fantastic because I have got the opportunity to ask some questions to you as well. Oh yes. मैं भी कहूँगा कि सोहेल जरा. That makes this show so unique, so special. Thank you. So congratulations. Thank you. Starting this idea. Thank you. See, the idea is, यार पता है क्या है, कैसर, I've just realized the world, and तुमसे भी सीखा है ये यार, इतना कुछ है हमारे इर्द गिर्द, इतने अमेजिंग लोग हैं, उनके पर्सपेक्टिव्स इतने अमेजिंग हैं. It's just that at times we get too carried away with what we know, and so we miss out on so much amazing knowledge that we could capture in our life. वो miss कर देते हैं. And I think this show is an effort to that. So here's the thing, कैसर, चीजें तो टफ हैं. देखें, मुझे पता है कैसर होप की बात करता है, पॉजिटिविटी की बात करता है, लेकिन ये बात कैसर, सुहेल, हम सब जानते हैं कि चीजें मुश्किल हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं. अमेरिका में आज से तीन हफ्ते पहले असेसमेंट था 1.6 मिलियन जॉब जाने का, 2 हफ्ते पहले था 3.8 जाने का, अभी ऑलरेडी 10 मिलियन क्रॉस हो चुका है. ये सिर्फ अमेरिका नहीं है. अब आप सोचे ना, ये तो अमेरिका है जिसकी लिस्टेड इकोनॉमी है, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, तो वहाँ ये पता चल रहा है. यहाँ तो पता भी नहीं चल रहा क्या हो रहा है. सो चीजें मुश्किल हैं. जिनकी जॉब्स चली, बेचारों को, उनको भी नहीं पता अभी तक. हाँ, yes, which is very sad, right? इस सिचुएशन के अंदर Kaisar, what do you think? How you look at this present situation, and what role hope has to play here? Yeah. यार मुझे लगता है कि होप हैज टू प्ले अ मेजर रोल, और होप के अलावा किसी और चीज का परहैप्स उतना रोल है ही नहीं जितना इस वक्त होप का है. व्हाई? बिकॉज होप होती क्या है? होप ये है कि बाय द वे व्हेन थिंग्स आर गोइंग ग्रेट तो शायद होप की इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होती है. तो होप की जरूरत ही तब पड़ती है जब चीजें बहुत खराब होती है, राइट? एंड थिंग्स आर नॉट एज गुड एज वी वुड हैव लव्ड टू. So इसलिए these are the times when hope is very critical. और इससे पहले मैं होप के ऊपर कमेंट करूं, I would really like to thank you because ये पहला मौका होगा कि मेरे व्यूअर्स को पता चलेगा कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ. So मैंने अपनी सारी साइकोलॉजी जो है ना, वो आफ्टर योर क्वेश्चन मेरे सारी दिमाग में घूम गई है. होप का जो उलट है वो क्या है? नाउमीदी. और ये जो नाउमीदी है, इसके ऊपर हम जो साइकोलॉजिस्ट है, वी बीन स्टडीइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. और इसमें पहली स्टडी हुई थी 1965 में. मार्टिन स्लिगमैन और उसके साथियों ने की थी, और उन्होंने 2 डॉग्स पकड़े और उन डॉग्स को उन्होंने एक बॉक्स के अंदर रखा. और एक डॉग का जो बॉक्स था उसमें एक डोर भी था जिसको बटन दबा के खोला जा सकता था, और एक डॉग के बॉक्स में कोई बटन नहीं था. और दोनों को उन्होंने, उस टाइम पे शायद अलाउड था, तो एनिमल राइट्स वाले छोड़ते नहीं उनको, उन्होंने उनको लाइट किस्म के इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए. तो सुहेल, होता ये था कि वो जब शॉक मिलते थे तो जो एक डॉग था जिसका दरवाजा खुला था,
वो भाग के निकल गया। जो दूसरा था उसको भी शॉक लगा, तो जान तो उसने भी बहुत मारी, ही ट्राइड वेरी हार्ड टू गेट आउट ऑफ इट, लेकिन क्योंकि दरवाजा कम वक्त बंद था, तो डिस्पाइट व्हाटएवर ही डिड, ही कुडंट कम आउट ऑफ इट। सो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उसको शॉक लगते गए, और वो बेचारा शॉक सहता रहा, बट बाहर निकलने का कोई रास्ता मौजूद ही नहीं था। तो दिस इज नॉट द रियल एक्सपेरिमेंट। जो असल शॉकिंग बात है वो ये थी कि अब इन दोनों डॉग्स को उठा के मार्टिन स्लिगमैन ने एक और बॉक्स में रखा, जहाँ पे दोनों के लिए क्या कह रहे लेवल प्लेइंग फील्ड थी और इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, दोनों के दरवाजे खुले हुए थे। तो जो पहला डॉग था, जब उसको शॉक लगा वो भाग गया, मगर जो दूसरा डॉग था उसको शॉक लगा तो वो भागा नहीं। Sohail, it hurts me and it will hurt anyone else who is listening कि वो भागने का रास्ता होने के बावजूद वो चुप करके बैठा, अगले इलेक्ट्रिक शॉक का इंतजार करता रहा। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि उसने सीख लिया था कि कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। साइकोलॉजिस्ट ने इसको एक टर्म दी, उसका नाम है लर्न हेल्पलेसनेस। मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा सोहेल कि जिस तरह से हेल्पलेसनेस को हम लर्न कर सकते हैं थ्रू एक्सपीरियंसेस, इसी तरह से ऑप्टिमिज्म को भी हम लर्न कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। इसी तरह से हम होप को भी लर्न कर सकते हैं। देयर आर साइंटिफिक वेज टू बी एबल टू लर्न व्हाट होप इज। एंड फॉर्चुनेटली जो हम इंसान है, मे बी आई मस्ट से अनफॉर्चुनेटली, हम आई डोंट इवन फील गुड अबाउट सेइंग दिस के वो तो डॉग्स थे यार, तो वो उनको दरवाजा खुला नजर नहीं आ रहा था। वही अशरफुल मखलूकात, हम भी कई दफा एक बार, दो बार, तीन बार फेल होते हैं, कोशिश करते, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, तो फिर हम भी सीख जाते हैं, वी लर्न कि यार कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। और अगर ये बात सोहेल जिंदानी करता तो पता कैसे करता, वो ये करता कि हम में से कुछ लोग जो है वो खुद तजर्बे में से गुजरने से पहले ही दूसरों की कोशिशों के नताइज ना निकलते हुए देख के वहीं से सीख जाते हैं। यार उसने कोशिश की, उसको कुछ नहीं मिला, तो मैं भी कोशिश नहीं करता। सो दिस अनफॉर्चुनेटली ये जो होपलेसनेस की वबा है, ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। एब्सोल्युटली। और ये भी कंटेजियस है। एक दो तीन बंदे बैठ के जब नेगेटिव बातें करते हैं और होप को बेचारी को उठा के विंडो से बाहर फेंक देते हैं, so then this hopelessness spreads. Right. So I'm so happy that you gave me this opportunity to speak about it, because मेरे तो ब्लड के अंदर मुझे लगता है कि ये पे होप है। And I learned it from my father. And you know, we were like 8 siblings. माँ बाप के पास कोई resources नहीं है। My father had to go for like 30-40 migrations in search of this beautiful future for all of us, for his kids. होप है क्या? होप है कि आप उस टनल के एंड के ऊपर अंधेरे में एक रोशनी की किरण देखते हैं, जबकि वो होती नहीं है, यू स्टिल सी इट। अगर वो है और वो नजर आ जाए तो वो होपलेस, वो होपफुलनेस नहीं है। होप ये है कि वो नजर भी ना आ रही हो एंड स्टिल यू आर एबल टू सी इट। एंड माय फादर हैड द एबिलिटी टू सी इट, एंड फ्रॉम लैया टू टोबाटेक सेंग टू जंग टू पता नहीं, हम 8 बहन भाई, हर कोई मुख्तलिफ जगहों पे पैदा हुआ है। My father would think and my mother would think कि यार ये जगह जो है ना, इसमें nobody has a sense of hope. मिसाल के तौर पे सुहेल, many of my audience would probably not know, मेरी फैमिली के majority of the people around me, majority का मतलब होगा 99%, my closest relatives, they still have this disease called hopelessness, because they have learned through their negative experiences कि कोई फायदा नहीं है कोशिश करने का, पढ़ाई का जैसे कि कोई फायदा नहीं है। अभी क्या सर, ये अभी I was listening and I was engrossed into that. I think वो जो तुमने बात कही कि होप का पता तो तभी चलता है जब हालात बुरे हो, हालात अच्छे हो तो फिर होप, सभी होपफुल होते हैं अच्छे हालात में। जैसे मैं अभी थोड़े दिन पहले, हाँ, मैंने एक मजाक किया था, बहुत लोगों को बहुत बुरा लग गया था। मैं कहा सारे लोग जो वूका वर्ल्ड सिखा रहे थे ना, दुनिया को समझा रहे थे वूका वर्ल्ड क्या होता है, सारे गायब हो गए, सारे गायब हैं, लिटरली दिख ही नहीं रहे, क्योंकि वूका इज ऑन देयर फेस नाउ। सो इट्स देयर। एंड आई थिंक अभी तुमने एक और, मैं
एक चीज मैंने सीखी थी, एंड आई थॉट कि आई शेयर विद यू एंड दैट थिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल. या यू सेड होप का जो उलट है वो होपलेसनेस है. मैंने एक बहुत जबरदस्त चीज सीखी थी एक ऐसे शख्स से जिसका ताल्लुक हमारे प्रोफेशन से बिल्कुल नहीं है, और उसने यार आई थिंक मेरे पर्सपेक्टिव बहुत सीधा कर दिया होप के बारे में. उसने कहा राइट. होप का उलट एरोगेंस है. The opposite सीरियसली. of hope is arrogance. What is arrogance? Arrogance वो कि मुझे जितना दिख रहा है ना वही सही है और माय कुछ हो गॉड. ही नहीं सकता इसके अलावा. And I was awed. I was like, wow, man, I never thought like that. So hope का opposite उसने मुझे सिखाया is arrogance. आपको जब अकड़ हो जाती है अपनी साइड के ऊपर, when you think what you see is right and the ultimate, then you lose hope. Because आप तो फिर एक certain limit तक ही देख सकते हैं, उसके आगे तो फिर ख्वारी है. So I think that was very very important for me as well. Right? And Sohail, this is so important to be hopeful because people like you and me, and we have families, for instance. So we are a source of hope Right. for them also. Right. तो वो हमारी तरफ देखते हैं. We have organizations जहाँ पे लोग हैं जिनका रोजगार हमसे वाबस्ता है. तो इट इज मुझे लगता है कि ये कोई इतना ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं रहा होप. इट हैज बिकम अ कंपल्सरी सब्जेक्ट. यू डोंट हैव अ चॉइस. Very important. एंड Very important. So कैसे वो बिगिन टू सुपर मंत्रा? अभी कॉन्वर्सेशन शुरू होने से पहले you were telling me the recipe of the kava. अभी वो रेसिपी हम लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, वो हमारा सीक्रेट रहने दो उसको. मुझे ये बताओ मुझे ये बताओ what's your recipe to hopelessness? क्योंकि अगर कैसर मुझे ये कहे कि सोहेल मैं तो कभी होपलेस होता ही नहीं हूँ, तो मुझे पता है झूठ बोल रहा है. It's impossible, right? We all have that moment of fear, moment of worry, moment of हम सब concern. है? यार I'll be very quick. बहुत Yeah. सारी चीजें मैंने I'm lucky कि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी और मैंने पढ़ी भी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और बिजनेस साइकोलॉजी. तो मुझे और मैं जो टीचर पढ़ाती थी ना, माय टीचर वाज साइमा गजल, डॉक्टर साइमा गजल. तो मैं बड़ा ताबेदार किस्म का स्टूडेंट है. पता तो था कुछ नहीं. तो आई यूज्ड टू बिलीव इन हर कि डॉक्टर साइमा गजल जो कहती है वो बिल्कुल सही कहती है. सो देन लेटर ऑन आई रेड अ बुक अवेकन द जायंट विद इन. उसमें टोनी रॉबिन्स ने भी उस तरह की बातें की थी. उसमें 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो होपफुल लोगों को होपलेस लोगों से डिफरेंशिएट करते हैं. और मैंने भी आई एम लकी कि बहुत अर्ली स्टेज पे, अर्ली तो नहीं है, 23 साल मैंने रखे गए जिंदगी के. एंड आई ट्राइड एवरीथिंग दैट आई पॉसिबली कुड बट आई फेल्ड. आई डिडंट हैव मनी, आई डिडंट हैव एनीथिंग इन लाइफ. वो जो भी आप सोच सकते हैं ना, पीस ऑफ माइंड भी नहीं था और कुछ नहीं था. तो मुझे पता चला कि 3 चीजें हैं. उनमें से जो पहली चीज है, जब किसी होपलेस बंदे को, जो ऑप्टिमिस्ट नहीं है, जो नेगेटिव है, उसकी लाइफ में जब कोई एडवर्सिटी आती है, कोई चैलेंज, कोई डिफिकल्टी, जैसे कि इस वक्त हम सबकी जिंदगी में, तो उनको लगता है कि ये परमानेंट है, ये कभी जाएगा नहीं. ये जो मैं इंटरव्यू के लिए गया था और मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरा इंटरव्यू नाकाम हो गया, तो दिस फेलियर इज परमानेंट एंड नोबडी इज एवर गोना मी गिव अ जॉब. ये लड़की ने जो मुझे मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया, इसका मतलब है कि इट्स परमानेंट, सो नो गर्ल एवर इज गोना मैरी मी. सो ये जो मुझे पहली ट्रेनिंग में ऑडियंस ने पसंद नहीं किया, दिस फेलियर इज परमानेंट. सो ऑन द अदर हैंड जो ऑप्टिमिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये परमानेंट नहीं है, दिस इज टेम्पररी, दिस इज ओनली वन इंसिडेंट. Beautiful. Right? So there are plenty of wonderful people who could possibly hire me. There are wonderful girls who can possibly would like to marry me, and there are so many opportunities for participants who like me as a trainer. एक लाइन, I've been rejected यार, you cannot imagine. अगर पाकिस्तान को कोई सबसे ज्यादा रिजेक्टेड ट्रेनर होगा ना, तो मैं हूँ. मतलब सीरियसली, आज मैंने अपनी कोचिंग सर्विसेज फ्री की हैं. आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, अल्हम्दुलिल्लाह, हम्बल्ड. You're doing an amazing. मजा आ रहा है. या तो यू सी, रात को जब मैंने देखा कोई 870 प्लस लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ. तेरे भाई की कोई ट्रेनिंग फ्री में भी एक्सेप्ट नहीं करता, राइट? अब तो खुशी से मैं बता रहा हूँ, उस वक्त आई यूज्ड टू क्राई. मैं सिजदे में गिरता था और अल्लाह के सामने रोता था कि यार व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय लाइफ. अब तो मैं पैसे भी नहीं मांग रहा, and still nobody is accepting it. So I learned, और वो ऐसा टाइम था सोहेल जब I was lucky कि मैंने लर्न किया कि ये परमानेंट नहीं है.
there is going to be a day जब Right. ये सब खत्म हो जाएगा and people will love to hire me. दूसरी One चीज, thought of permanent, right? Good. Second, पहली परमानेंट, दूसरी है परवेसिवनेस, कि ये जो मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आई है, ये मेरी सारी एफर्ट्स को अंडरमाइन कर देगी और मेरी लाइफ के बाकी एरियाज को भी डिमिनिश करके रख देगी. सो मेरी जो मंगनी टूटी है, इसका मतलब है कि मैं अब प्रोफेशनली भी गया और मैं फिजिकली भी गया और स्पिरिचुअली भी गया और मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई. ये जो मेरी जॉब छूट गई है, इसका मतलब है कि लाइफ के बाकी एरियाज भी सब तबाह. तो वो मैंने सीखा कि कैसर और बाकी लोगों को भी मैं यही कहूंगा कि इस वक्त अगर आपकी लाइफ में कोई क्राइसिस खुदा न खास्ता आ भी गया है, गॉड फॉरबिड्स आपका बिजनेस बंद हो गया, भाई यू स्टिल हैव ब्यूटीफुल किड्स विद यू, यू गॉट अ वंडरफुल फैमिली, आप अपने घर के अंदर रह रहे हो, you still have some money in your bank account, you are eating delicious food every day, you have plenty of books to read, you have wonderful friends to bank on. तो भाई सारी जिंदगी तो तबाह नहीं हुई है, सुपरवेसिव नहीं है. सो साइकोलॉजी में हम पढ़ा करते थे कि एक जनरलाइज व्यू है कि सब लोग खराब हैं, जैसे आप बोलते हैं सारे पुलिसमैन करप्ट हैं. सो यू गॉट टू बी स्पेसिफिक. यार स्पेसिफिक होने से जिंदगी में इतना सुकून आ जाता है कि ये जो डिजास्टर है, प्रॉब्लम है, एडवर्सिटी है, ये परवेसिव नहीं है. एक जिंदगी का एरिया तबाह हुआ और वो भी टेम्पररी है. तो तीसरी चीज है वो है पर्सनल, और ये बड़ा ट्रिकी है सोहेल. पर्सनल के दो एलिमेंट्स हैं. एक ये कि ये प्रॉब्लम मेरी वजह से, तो मैंने कोई गुनाह किया है और मैं बहुत ही ज्यादा कोई घटिया इंसान हूँ और बुरा इंसान हूँ और ये सब मेरी वजह से, राइट? मैं कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता है. सॉरी मैं बीच में बोला. कल एक शख्स बेचारा बहुत डिप्रेस था. एक तो मैं लोगों को इस इंटरव्यू के जरिए भी बताना चाह रहा हूँ, डिप्रेस लोग मेरे पास ना आया करें, क्योंकि मैं आपको मजीद डिप्रेस कर दूंगा. तो वो कल मेरे पास आया बेचारा और मुझे कहता है, सोहेल मुझे तो लगता है कि ये जो है ना, जो कुछ हो रहा है दुनिया में, ये मेरे और तुम्हारे गुनाह है सोहेल. वाह 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 वाह. अच्छा भाई, मैंने कहा देख, मेरे तो नहीं होंगे, तेरे होंगे, पहली बात. और दूसरी, हाँ, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात जिसको मैं चाहता हूं कि तू समझ, वो ये कि तुझे लगता है तू इतना इंपॉर्टेंट है कि तेरी गुनाह के चक्कर में पूरी दुनिया की इकोनॉमी रुकी हुई है. मतलब थोड़ा सा तो बंदा आउट ऑफ ड्रग्स बात करे ना, मतलब एक कॉन्शियस में रह के बात करे, कि आपको लग रहा है कि आपकी वजह से अल्लाह ने सारी कायनात, बिल्कुल अवाम, जितने लोग नेकी कर रहे थे, मस्जिदें बंद हैं. क्यों? क्योंकि हमारे भाई ने बहुत गुनाह किए. मैं कहा यार लेट्स ग्रो आउट ऑफ इट. सो सॉरी टू डिस्टर्ब. श्योर. सो इसमें एक थिन लाइन है जो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन वेरी क्विकली, आई अंडरस्टैंड टाइम थोड़ा हमारे पास कम है और मैंने भी सवाल पूछने भाई, जाने नहीं दूंगा. तो ये जो है, जो तीसरा है पर्सनल वन, के ये मेरी वजह से है और मैं गिल्टी हूँ और मैंने कुछ गलत किया, मुझे जॉब नहीं मिल रही तो मैं गलत हूँ, मेरा रिश्ता नहीं एक्सेप्ट हो रहा, तो इसका मतलब है कि मैं आई एम नॉट वर्थ इट. जो इसकी दूसरी साइड है वो ये है कि पीपल टेक इट पर्सनली. सो ये रुख मैंने सोचा कि यार ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है. तो करंट सिनेरियो में जो कोरोना का क्राइसिस है वो भाई सिर्फ तेरे साथ नहीं है, तो डोंट टेक इट पर्सनली. एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू द सेम चैलेंज. So one of my senior colleagues in training who currently doesn't work with us, तो उसने मुझे कॉल किया, क्या सर मुझे बताओ, मेरा इतनी ट्रेनिंग सारी गायब हो गई, अब मैं क्या करूं. तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया मोहब्बत से कि ये तेरे साथ नहीं है सिर्फ, ये हम सबके साथ है. आई हैव लॉस्ट ऑल माई बिजनेस. सोहेल, दिस वाज सपोज्ड टू बी माय बेस्ट क्वार्टर एवर जब से पॉसिबिलिटीज बनी है. मतलब हम कह रहे थे उड़ा के रख देंगे जिस दफा, पता नहीं क्या कर देंगे. आई मेड लॉट ऑफ प्रॉमिसेस टू माई वाइफ, बस तू देख क्या करता हूं मैं इस दफा. वो सब चला गया. बट पर्सपेक्टिव में रखेंगे तो मैं सुकून में रहूंगा कि यार दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ मी एंड दिस इज नॉट ओनली विद मी, राइट? एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू द सेम चैलेंज. सो तुम कोई स्पेशली, तुम पे कोई अजाब नहीं है. एट द सेम टाइम सोहेल, इसमें जो थिन लाइन है वो ये कि जब मैं कहता हूँ इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट डजंट मीन
I escape responsibility. So sometimes I have a crappy idea, बिजनेस का आइडिया मैं भी शुरू कर रहा हूँ, बर्बाद किस्म का तबाहकुन घटिया आइडिया, एंड उसमें मुझे फेलियर आ गई तो मैं कहूँ इट्स नॉट परमानेंट। और फिर जब वो और फेलियर आए, चूंकि आइडिया घटिया है, तो मैं कहूँ दिस इज ओनली वन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, इट्स नॉट परवेसिव, पूरा प्रोजेक्ट तो अच्छा है। एंड इफ आई गो टू कपल ऑफ पीपल एंड दे रिजेक्ट मी, तो मैं एक्सप्लेन करूँ उसको कि भाई दिस दिस इज बिकॉज दे नॉट गुड पीपल, दे वर इन बैड मूड। तो यहाँ पे जो पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म है वो तबाह कर देगा मुझे। सो देयर नीड्स टू बी सम बैलेंस आल्सो, कि कहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक होना है और कहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना। राइट। मैं एक दफा आई वाज शेयरिंग विद यू ना, मैं तो वो जो होते हैं ना, वो जिनको बताते हैं कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तो उसके बाद लोग कहते हैं अब तो करके दिखाऊंगा। एंड आई रिमेम्बर शेयरिंग विद यू वो लाहौर में टी हाउस में दैट मेरे साथ उल्टा रहा है। मुझे जब कोई कहता है ना तुम ये कर ही नहीं सकते, तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि कह कौन रहा है। और मुझे लगता है ना अगर ढंग का बंदा कह रहा है कि तुम नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ फिर सही कह रहा होगा, इतने तजुर्बे से कह रहा है तो मैं कुछ और ट्राई कर लेता हूँ। अब ये मैं किसी को सिखाता नहीं हूँ, बिकॉज दैट्स माय मंत्रा, it may crush your life, right? But I think that's the beauty of human being, is that we all be differently and we all respond to things differently and we all sadly but react to things also differently. So Yeah, but I think these brilliant. points I think would be a great value. I mean, I learned so much out of it. Yeah, you had to ask question, please go ahead, I'm there. मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब मेरा मौका है। अच्छा ये बताओ कि हाउ ऑप्टिमिस्टिक आर यू अबाउट द करंट सिनेरियो? सोहेल जिंदानी Oh, जो हर चीज में से ह्यूमर निकालता है और I लोगों के शेरों को बखेर देता है। मैं तो अल्लाह का इतना शुक्रगुजार हूँ कि इस वक्त में मैं जिंदा हूँ। बिकॉज मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक पोस्ट किया था, ACBC, आफ्टर कोरोना बिफोर कोरोना, वी आर लिविंग इन दैट एज, वी आर द लकी ones who were alive before corona, and hopefully I pray that we stay alive after corona. And I think दिस इज द टाइम, जैसा तुमने कहा ना, ऑप्टिमिज्म होप का तो पता चल ही नहीं चलता है, सब अमन चल रहा हो, वो शिप कितनी अच्छी है वो डॉक पे तो नहीं पता चलना है, वो तो तूफान में ही पता चलना है कितनी अच्छी बनी हुई थी। तो हमारा मसला ये है कि हम आइसबर्ग को ब्लेम करने के लिए ढूंढते रहते हैं, हमें एक कोई आइसबर्ग। नॉइस हो रहा है, हाँ, हमारी इफेक्ट हो रही है आवाज, बिकॉज़ देयर इज लॉट ऑफ नॉइस को ड्रिल कर रहा है हमारे शायद हम साइड। नो इश्यूज, आई थिंक वो बेचारा कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च प्रोजेक्ट। अच्छा ठीक है। So what I'm saying is that I am optimistic. I would not use positive. I'm very consciously using optimistic. I know things are tough. I know things are tricky for a lot many people. But मुझे बहुत मैं आप डेटा, आई एम ऑब्सेस्ड विद डेटा। अगर मैं चाहता हूँ मुझे एक वर्ड के साथ लोग याद, दो वर्ड्स के साथ लोग याद रखें, एक रिसर्चर और एक डिस्ट्रप्टर। आई हैव इमेंस लव फॉर नंबर्स। एंड एक चीज जो मैंने डेटा में देख रहा था, दुनिया की ज्यादातर मेजर ब्रेक थ्रू कंपनीज आर प्रोडक्ट ऑफ क्राइसिस। वो 9/11 क्राइसिस हो, वो और कोई इंडिविजुअल क्राइसिस हो, इट इज ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ क्राइसिस। तो मैं तो इस वक्त ये कह रहा हूँ कि हम इसके बेनिफिशियरी बनेंगे या इसके विक्टिम बनेंगे, ये चॉइस हमारी है। अब हमें उसके हिसाब से प्लान करना। आई एम हेल टू मच ऑप्टिमिस्टिक। Excellent. Sohail, at the same time, you and I, we come across so many people who had started recently their businesses, invested everything into it. A friend of mine was starting a gym, उसने को 25 million rupees लगा दिए। तो मार्च में उसकी ओपनिंग थी, and he's lost everything for the time being. I have known friends out of Pakistan as well. They've lost their jobs पाकिस्तान के अंदर every day. मैंने रिक्वेस्ट भी किया बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को, जहाँ पे मैं इन्फ्लुएंस कर सकता था कि यार खुदा के लिए लोगों को जॉब से मत निकालो, बट स्टिल फॉर द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, लॉस्ट देयर बिजनेसेस, हाउ कैन दे कीप देमसेल्व्स होपफुल एंड ऑप्टिमिस्ट? अच्छा, सबसे पहले तो जहां तक मैं थोड़ा सा जॉब को क्लियर करता हूँ, और लेट्स हेल्प योर फ्रेंड जिसने जिम का काम किया है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं जॉब की बात करूं, आई थिंक इसमें दो केसेस हैं। एक तो यू हैव दीज रास्कल सेट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स हु आर ब्लडी टेकिंग अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ दिस entire scenario,
to throw their people out. And I think this is, I am waiting for things to get better, because then they will pay for it. And I'm telling you, they will pay for it, because the kind of trust deficit that would have happened, they would never be able to come out of it. There are few businesses which have actually been shut down. Travel business, airline business, these are businesses, hospitality business. I mean, these are shut down businesses. और उसमें I think we also have to be compassionate about the people owning that business, कि वो कहाँ तक इसको stretch कर सकते हैं. But जहाँ जैसे जो example you gave about your friend who invested into a gym. So here's my way of looking at it, and कैसा ये वीडियो उनके साथ शेयर करना. वो ये कि जिम बनाना उस वक्त किसी को भी नहीं पता था ये आने लगा है. Nobody knew. Question ये है, why the hell he invested in gym? He invested in gym because he believed in health and physical well-being. Beautiful. If he would have just looked at it as a bloody business making opportunity, अच्छा है ख्वार होने दो उसको. But if he invested into this because he believes in physical health, here is an opportunity for your friend. And what is that? The digital world is wide open. He should come up with physical fitness classes, online classes, offer it free, do whatever he can to promote the cause of health and fitness and physical well-being, and wait for the time things get better. Who people will think about him? Will people think about this XYZ friend, or will they think about a PC or Marriott या Serena या किसी और hotel के अंदर gym who just closed down and closed down? I think this is an opportunity for him to genuinely show in what he believes. When you're doing coaching work, why are you doing it? You're not doing it because now it's giving you money. You're doing it because you know deep down your heart it works. It helps people, and that's what we are doing. So I think this is जो मैं optimism कह रहा हूँ ना, this is a time of filtering people out, filtering out who were here for the cause versus who are here to make money. Those who are here to make money will suffer. There's no doubt about it, because there's nobody is, कैसे की wife आज सुबह पर्स लेकर ये सोच कर नहीं निकलती, let's see आज मैं कौन सा नया डिजाइनर बैग खरीदूंगी. वो नहीं कर रही है. She's not doing it. Not others are doing it. So there will be different. God, she's not doing it. नहीं, I'm sure nobody is doing it. उसका एक फंसा हुआ है, उसका एक बैग जो है ना वो उसमें कोरियर के पास फंसा हुआ है. अच्छा. पैसे वो पहले दे जो बड़ी परेशान है. Chale, God bless you with that. So yeah, that's my response. This is a time to give. This is a time to give. Lovely, lovely. यार also चूंकि लोग कई दफा सर्व करने से पहले हिचकिचाते हैं. I didn't want to share, but you are such a wonderful friend. We normally share things to an extent. मैं किसी के साथ भी इतनी ज़्यादा कभी comfort feel नहीं कर रहा होता जितनी सोहेल आपके साथ में करता हूँ. And I have an intent, इसलिए मैं share कर रहा हूँ कि अभी जब मैंने ये free sessions offer किए हैं और so far हम कुछ 200 के करीब लोगों को सर्व कर चुके हैं. It is so easy कि आप 200 लोग भरें और आधे घंटे में सबको, you do Facebook, I've seen हजारों लोग उसमें देख रहे होते हैं, but एक बंदे को personalized one to one इस वक्त दुनिया में एक वो है love, it's और love. एक तो शायद हम बहुत सी बातें उस तरह नहीं कर पा रहे होंगे जिस तरह जब हम फोन पे बात करते हैं नॉर्मली, तो हम अपने दिल की हर बात कर लेते हैं. तो कोचिंग में मैं देखता हूँ कि एक अजनबी बंदा होता है. He comes on a screen in front of you and he says, "कैसा I could never imagine in my wildest dreams कि मैं कभी आपसे कोचिंग ले रहा हूँ. I cannot believe you're sitting in front of me." और वो 1 to 1 आधे घंटे में दुनिया की हर अपनी vulnerability, अपने problems, हर चीज बताता है. Right. और कोचिंग में होता है कि I'm sure आपसे ज़्यादा किसको पता होगा, हम एडवाइस तो करते नहीं है और कभी नहीं बताते कि आप तुम्हें ये करना चाहिए और तुम्हें वो करना चाहिए. आधे पौने घंटे के अंदर वो खुद ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके अपना रास्ता खुद निकाल के और आपको कहता है कि थैंक यू सो मच, यू डिड इट. एंड आई कुड नॉट इमेजिन कि मैं इसका कोई सोल्यूशन भी निकाल सकता हूँ, और ये निकल आया. फिर उसको हम अकाउंटेबल ठहराते हैं और वो 1-2 दिन के अंदर आपको ईमेल करता है, जी अब मैंने ये इम्प्लीमेंट भी कर दिया, थैंक यू सो मच. सो वी बीन डूइंग इट. एंड जो असल बात मैं करना चाह रहा हूँ, इस प्रोसेस में ऐसा नहीं कि हम सर्व कर रहे थे तो हम सर्व ही कर रहे हैं, तो अल्लाह भी देख रहा है ऊपर. Yes.
Yes. राइट? Yes. तो वो इंटेंट को देखता है और पता नहीं कहाँ कहाँ से हमें पेड क्लाइंट्स ने भी अप्रोच किया ऐसे ही होता है। क्या बात। और और वो लोग जिनको हमने एक सेशन किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि दिस इज सो यूजफुल, सो लेट मी नो हाउ कैन वी डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैंने जो आई थिंक सेकंड सेशन किया वो एक कंपनी का सीईओ था, मेरा पहले से क्लाइंट है। तो उसने कहा कि सर मुझे तो पता था कि आपको आप कितने पैसे देते हैं, तो मैंने सोचा ये फ्री है तो लेट्स जंप अपॉन द अपॉर्चुनिटी। तो बट लेटर ऑन उस कोचिंग सेशन के नतीजे में वी गॉट एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क। तो Good. ऐसा नहीं है हम खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी खिदमत का जो सर्व करने का आप नियत से करते हैं तो ही रिवॉर्ड्स यू। Always there. It's always there. Good. अच्छा पता है कैसे हम लोग ये इंटरव्यू कॉन्वर्जेशन जो है ना 30 मिनट की रखते हैं और हम वैसे ही मुझे पता था कैसे ना टाइम ऊपर जाना है, दोनों इंतहाई नॉन डिसिप्लिन लोग एक साथ जमा हो गए। So here's, any वो है जिसका लंच भी जो 2:45 बजे तक नहीं हो पाता। yes, there is the challenge. So ट्रेनिंग में So, any concluding remarks from your side or any question that, because I have two questions for you, rapid fire questions. So, if you have a rapid fire for me, you can ask first. बेटर है मैं पहले करूं। अच्छा एक एक कर लेते Hello, हैं, yes, sir. लेट बी आस्क। Okay. तो ये बताओ कि और लास्ट पिछले कोई 5 सालों में व्हाट इज वन बिलीफ दैट यू अडॉप्टेड which has positively impacted your life, personal, professional? Good. The day I learned the distinction between me and my. Like Uh, to learn. uh, the moment me and my got sorted with me, I think my life has been in a wonderful order since then. मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी की सारी तकलीफें तो माय की हैं, माय जॉब, माय हाउस, माय फैमिली, माय रेपुटेशन, माय बिजनेस, माय मनी, सारा प्रॉब्लम माय का है, मी का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मी इज सो वंडरफुल, मी इज सो फुल ऑफ opportunity, and the moment I was able to distinguish between me and my, I think I'm having a super sexy Well, beautiful life. Thank you. वो पता है कि तुम मेरे फेवरेट ट्रेनर हो, पता है? You're very kind. I've said it so many times publicly. And I remember the last time when you spoke on the stage, and I was sitting like a 3-year-old kid in the audience, and I enjoyed your conversation, your talk so much, IBF में। और मुझे उस दिन बड़ा पछतावा हुआ कि मुझे सीटियां मारनी नहीं आती। Very kind. And I gave you a standing ovation. Thank you, Kesar. You're very kind. You're very kind. I'll say in 2 years, I always liked you. And एक मेरा TTT प्रोग्राम हुआ था उसमें मैंने I shared your story. वो पता नहीं अब तुम्हारे पास टाइम है कि नहीं, when you spoke at PC लाहौर, और मैं और वकार खादम और 5-4 हम और स्पीकर दोस्त बैठे हुए थे, तो ना कॉन्फ्रेंसेस में तो गप्पे लग रही होती ना, बस 1000 से ज्यादा लोग थे, and you showed up on a stage. This was 2009. It was a And I terrible told, conference. Yeah. तो मैंने अपने ऑडियंस टीटीटी में पार्टिसिपेंट्स को सुना रहा था, आई डिडंट रिवील कि वो कौन था। अच्छा। मेरे घर एक स्पीकर आया तो उसने आगे थोड़ी अटेंशन गेन की, लेकिन हम तो कमिटेड थे कि हमने इसको नहीं सुनना और हमने तो अपनी बातें करनी है जैसे सारे हम कमिटेड होते हैं। बट यार इट वाज लाइक लेस देन 2 minutes that you glued us, and nobody in the audience dared not looking at you. You're kind. And that was one of the finest presentation I ever heard. उसमें वो सारे थे, असफर का इवेंट था और सारे इंटरनेशनल स्पीकर्स भी थे, बट nobody earned that much attention and respect as you did. Thank you. So that was the day when I became your fan, और उस पे जो पक्की मोहर लगी, जिसके बाद मैंने पब्लिकली हर फोरम पे कहा कि सोहेल जिंदानी is Pakistan's best speaker and he's my favorite. Thank you. Thank you. You're very kind. अब मेरा रैपिड फायर है। So my rapid fire. क्या सर सब कुछ ले लें तुमसे वापस, जो कुछ कमाया, जो कुछ बनाया, सब वापस ले लें, and you have an option to keep 3 things, 3 possessions that you like to hold on to. What are those 3 things? यार मेरे पास तो वाकई कुछ भी नहीं था, so I won't be surprised. चीजें
I like it. लाइक 1800 रुपए महीने की आमदनी, I like it. I लाइक like it. तक नहीं थी, तो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, लिखनी नहीं आती थी, कुछ नहीं था। तो इसलिए मैं वापस जाऊंगा वही चीजें जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ पे पहुंचाया। वन इज आई एम स्पिरिचुअली connected. I don't reveal it too often to people, but Alhamdulillah, I get some spiritual guidance. Kamran Rizvi Saab was the first one in 2003 जिनको मैंने पहली बार reveal किया था. So that too was because of an incident that I'll share personally with you. मैं कभी भी publicly नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि तू खुशकिस्मत है कि तुझे spiritually ये रहनुमाई मिली है, तो इसी तरह रहना। और जो दूसरी चीज़ है वो है gratitude. मैं कभी नहीं भूलता कि मैं कौन था। मुझे अपनी औकात हमेशा याद रहती है, as much as I possibly can. मैं जब कराची उतरता हूँ जहाज़ से, तो कभी शायद ही अल्लाह ताला माफ़ करे अगर ऐसा लम्हा आया हो, जब मैं शुक्र ना करूँ कि मैं जहाज़ पे आया। आई नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। जब एक गाड़ी खड़ी होती है और वो आपको उठा के एक 5 स्टार होटल में ले जाती है। So I never forget the time when it took me 37 hours to reach Karachi through a local train. And Sohail, I stayed in Karachi for a number of days in a room where there were 16 other people with me. And I was one of them. And every day I used to search for a job and got rejected every day. तो अब मैं किसी हम बहुत लकी हैं सोहेल, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। Absolutely. Absolutely. साल में कोई एक आध मौका होता है जब अपने पैसे से फ्लाई करते हैं और अपना होटल खुद पे करते हैं। अभी मैं सवात में था तो मेरे आदत नहीं है ना पे करने की, आप साइन करके निकल जाते हैं। तो मैंने उसको पैसे दिए, तो मैं अंदर से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ हमेशा। सो एक तीसरी चीज है वो जो मैंने अपने वालिद से सीखी, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम माय फादर, वो है गिविंग। तो हमने देखा कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते थे, वी हैड वेरी कंस्ट्रेंट लाइफ, और उस कंस्ट्रेंट के अंदर से हमें पता चलता था कि देयर इज अ फूफो। हम कहते हैं फूफो कहाँ से आ गई, हमारी तो एक ही फूफो है। तो वो बताती थी कि आपके अब्बू ने मुझे अपनी बहन बनाया है, और आपके अब्बू ने मेरी शादी की है, और आपके अब्बू मुझे गंदम भी भेजते हैं और चावल भी भेजते हैं। सो आई रियलाइज्ड कि आई मीन व्हाट अ वंडरफुल पर्सन ही वाज। हम घर में अगले खाने के लिए सोच रहे हैं क्या होगा, दिस मैन इज गिविंग अवे एवरीथिंग। मैं और सोहेल तुम हम जितना भी दे लें, लेकिन स्टिल अपार्ट फ्रॉम जो नॉलेज अल्लाह ताला ने हमें दिया वो तो है ही नहीं अपना, वो तो देना ही देना है। और जो मटेरियल रिसोर्सेज अल्लाह ने हमें दिए हैं, तो कभी हम दे दें तो उसके बाद भी कभी ऐसा नहीं होता कि अब हमारा अपना क्या बनेगा, ये तो सारे दे दिया। सो माय फादर वाज समबडी जो सब दे के भी सुकून में थे। ये कैसे इतनी तुमने अच्छी बात शेयर की है। मेरे जहाँ चेकबुक और ये होती है ना ऑफिस में, तो वहाँ पे मैंने हज़रत अली का एक कॉल लगाया हुआ है। हज़रत अली फरमाते हैं, मैं वर्ड टू वर्ड तो ऑफ कोर्स नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन कि तुम्हारे पास तुम्हारे इस्तेमाल से ज़्यादा जो कुछ है ना, तुम उसके केयर टेकर हो। ये माइंडसेट अगर हमें आ जाए ना, वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल थॉट। आई थिंक हम इतना और ये पता है वही वाली जो बात अभी कैसर मैंने की ना, शायद योर फादर knew that me is taken care of, and so whatever it was he never got worried in sharing. Unfortunately हम लोग जब अपना माय मी बना लेते हैं ना, फिर सत्यानाश हो जाता है। वो शॉन कवी की किताब में पहले चैप्टर पे पहले पेज पे लिखा था, ये हमने स्कूल में पढ़ी थी, 7 Habits of Highly Effective Teens। पहले पेज पे लिखा था, if you are what you have and what you have is lost, who you are। Oh wow, reminded me. Right? Yeah, I read it. And वो And it impacted me as well. Yes, अब मैं क्लास 6 में था। वो शाकिरा मन्नान हमारी वो आई थी कराची फाउंडेशन पब्लिक स्कूल से पढ़ाने। उसने बताया if you are what you have and what you have is lost, who you are। And I was like stunned
मेरे को यार वाकई हम तो पता नहीं क्या होंगे फिर, अगर मेरे माँ बाप, अब 6 क्लास का बच्चा है ना, क्या सोचेगा, मैं कहा बैग नहीं हो मेरे पास, हो मेरे डैडी नहीं हो, मम्मी नहीं हो, घर नहीं हो, तो फिर मैं कौन हूँ? एंड दैट गॉट मी इनटू दैट क्वेश्चन टुडे। मैं शायद उसको मी एंड माय में बोलता हूँ, बट वो चीज वही है, वो फंसी तब थी। Brilliant. आई थिंक The अमेजिंग। only difference is I read it when I had already started my business. अच्छा। मैंने काफी देर में पढ़ा ये. आई वाज फॉर्चुनेट टू रीड बैक इन क्लास 6। मुझे याद है स्कूल में वो वर्कशॉप हुआ था, लाइफ स्किल्स वर्कशॉप के नाम से हुआ था। क्या? सो इट स्टेज वंडरफुल। सो एक सवाल मेरा रहता है अभी. राइट, प्लीज गो अहेड, एक सवाल मेरा भी कितना टाइम है हमारे पास? अभी है। 3-4 मिनट है. टाइम, हम टाइम वैसे ही ऊपर कर चुके हैं, तो अब बोलो। मुझे यकीन है कि लोग ये सुनेंगे बिकॉज सुहेल जिनानी का ये जवाब जो है ना ये मजेदार होगा. यार व्हाट इज वन ऑफ योर फेलियर्स जो शुरू में बड़ी दिल पे लगी चोट की तरह, और लेटर ऑन यू फाउंड आउट दैट आई एम व्हाटएवर आई एम बिकॉज ऑफ दिस फेलियर. कोई ऐसी चीज है जिंदगी में मोहब्बत में नाकामी के अलावा? भाई को मोहब्बत में नाकामी कभी नहीं हुई है। निकलवा लिया मुझे. अच्छा नहीं, बट आई एम नॉट एज लकी एज यू. अच्छा, यार इसका आंसर हो सकता है थोड़ा सा, मैं कोशिश करूंगा कि इसमें मैं जितना रियलिस्टिक होके बात कर सकूं। आई कांट थिंक ऑफ एनी, आई टेल यू व्हाई। मेरा, और शायद इसमें ना, जैसे अभी तुमने कहा ना, तुमने वालिद से ये चीज सीखी गिविंग की। माय फादर टर्न्स आउट टू बी माय बेस्ट फ्रेंड सिंस ऑलवेज। मैं अभी भी घर जाता हूँ ना, अभी मैं यहाँ से घर जाऊंगा, मैंने अपने वालिद को बताया था मैं कैसर के साथ कॉन्वर्जेशन करने वाला हूँ, ही नोज यू। मैं प्लीज भी घर प्लीज जाऊंगा, टेक माय रिगार्ड्स टू हिम. आई विल डेफिनेटली डू। तो मैं जैसे ही घर जाऊंगा ना, मुझसे फौरन पूछेंगे कैसी रही, क्या जबरदस्त चीजें थी। नाउ ही शुड नॉट गिव अ शिट अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, राइट? बट ही इज सो इन्वॉल्वड, ही इज ऑलवेज देयर। यू आर ब्लेस्ड. हाँ, एब्सोल्युटली, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी यार। तो मैं पता नहीं आउट ऑफ माय पर्सनल प्रॉब्लम या क्या, मैं कभी भी फेलियर प्रोसेस नहीं कर सका हूँ। फॉलिंग समझ आता है मुझे, मैं फेलियर को प्रोसेस नहीं कर सकता। मतलब मैं फेलियर की एग्जिस्टेंस ही नहीं समझ सकता। मुझे कभी भी क्लास में किसी के फर्स्ट आने पे दुख नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं खुशी खुशी दूसरों को बताता था फर्स्ट ही आया है। और उस वक्त मेरे माँ बाप बहुत सड़ते थे, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर कंपेटिटिव इंटेलिजेंस नहीं है। यानी अगर मुझे कैसर की बुराई या तारीफ करनी है तो वो करते। तुम्हें याद है कैसर, जब आईबीएफ 1 में यू वर पार्ट ऑफ आईबीएफ 1 या एंड यू वर रिमेंबर. नॉट पार्ट ऑफ आईबीएफ 2, तो मुझे किसी ने बोला कि इस बार कैसर को नहीं बुला रहे, उसको बुरा तो नहीं लगेगा? मैं कहा मैंने पहली दफा भी उसको इसलिए नहीं बुलाया था कि उसको अच्छा लगे। आई रिमेंबर. यू सी, अब मैं वो और प्रोसेस। मैंने खुद किया काफी लोगों को. मैंने कहा यार सुहेल इज सो आउट ऑफ स्ट्रेट आउट ऑफ हार्ट हाँ एंड इज सो स्पॉन्टेनियस. उसके जो दिल में होता है ठक करके कह देता है. हाँ, तो मैं उसको कहते लग. प्रोसेस नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक एग्जांपल, शायद वो इस आंसर को कंप्लीट कर देगा, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ ऐसी रही। मेरी बेटी अभी स्कूल में रेस में भागी, तो 20 लोग थे रेस में, बेचारी राइट. 12वें नंबर पे आई। अब कुछ तो बंदा बढ़िया. बाप को जाएगा ना। तो 12वें नंबर पे आई, फिर गाड़ी में बैठे हम जा रहे थे, मुझे कहती है पापा आई नेवर विन। मैं कहा नो प्रॉब्लम। तो मुझे कहती है पापा हाउ कैन आई कम नंबर 1 इन द रेस। मैं कहा दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जो तुमसे आगे 11 लोग थे ना, जिस दिन वो स्कूल नहीं आए ना, उस दिन रेस लगाना, यू विल बी नंबर 1। सिंपल। तुम मैं फेलियर को प्रोसेस नहीं कर पाता, मुझे समझ ही नहीं आता होता क्या है। क्योंकि वो जो तुमने परमानेंट वाली बात बोली थी ना स्टार्ट में, मैं तो साला लाइफ को परमानेंट नहीं लेता। तो जब लाइफ को ही आप परमानेंट नहीं लेते ना, तो मुझे लगता है कि फेलियर वाला चक्कर का, हाँ फॉल हो जाते, गिर जाते हैं, उठे कपड़े झटके, सारा आगे बढ़े, इतना टाइम वेस्ट करने का है ही नहीं। दैट्स जबरदस्त. हाउ आई प्रोसेस। तो टू यू फेलियर डजंट एग्जिस्ट? आई कैंट प्रोसेस इट। होती होगी, मेरी बेइज्जती हो जाती होगी, मुझे पता नहीं चलता, लेकिन मैं महसूस नहीं करता। गुड है. तो आपने दूसरा क्वेश्चन मुझसे करना था. हाँ, माय क्वेश्चन इज कैसर, वन लाइनर टू सक्सेस। और कैसे देखते हो, एक लाइन में बताओ सक्सेस क्या है तुम्हारे लिए? यार बहुत जल्दी बताऊंगा. टू मी सक्सेस इज लाइक अ कॉइन जिसकी एक साइड है अचीवमेंट और अकम्पलिशमेंट्स आपकी क्या है, व्हाट हैव यू डन, राइट. और उसकी जो दूसरी साइड है वो है फुलफिलमेंट. ब्यूटीफुल। तो आमतौर पे हम सब जो है वो एक साइड देखते रहते हैं. उसमें अकम्पलिशमेंट्स हैं तो सारे सक्सेस टॉयज पूरे हैं आपके.
कड़ी है, वो है, तो चेक बॉक्स हो गया। तो क्या दिल में इत्मीनान है? तो पता चलता है वो नहीं है। और ऑन द अदर हैंड इत्मीनान है, लेकिन अकम्पलिशमेंट ही कुछ नहीं है। तो अल्लाह ने पोटेंशियल दिया था ये वाला, सोहेल जिंदानी इंस्पायर करेगा 10 मिलियन लोगों को, और सोहेल जिंदानी 3 लोगों को इंस्पायर करेगा। अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, बड़ा इत्मीनान है। तो वो भी फेक इत्मीनान है। जो आप करने आए थे, अगर वो आप कर लें, अकम्पलिशमेंट और फुलफिलमेंट दोनों इकट्ठा हो, तो टू मी दिस इज सक्सेस। क्या बात है, this is so profound. Wonderful, Kesar. So we're done. I think I had a wonderful time talking to you. हम थोड़ा सा ओवर टाइम चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, लोग सुनेंगे क्योंकि मुझे बहुत मजा आया है। और I'm मुझे तो sure लगा ही नहीं टाइम हो गया इतना सारा। हाँ, बहुत टाइम हो गया। हमने आधा घंटा एग्री किया था, लेकिन हम शायद 50 मिनट तक चले गए, which is beautiful. This is good. So thank you, Kesar, for this conversation, and I think I really hope कि हमारी इस conversation से, that's the idea behind this, हमारी इस conversation से शायद किसी की लाइफ में कोई नया perspective ऐड हो। I love the word तुमने start में use किया था, perspective. It's all about perspectives, and I think the kind of perspectives you added to the conversation were beautiful. So wonderful. Thank you, Kesar, for being part of थैंक it. यू सो मच, थैंक यू, मजा आया। Wonderful listeners, I hope आप लोगों के लिए भी this would have been an engaging conversation. Kesar is a fantastic man, and by the way, अभी तक उसका वो free coaching वाला खत्म नहीं हुआ है. Take benefit Yeah. of it, and there are other coaches also in the team of Yeah, possibility. there are like more than 40 who joined me. Wow, This, I think this is incredible. So take benefit out of it, Kesar. I would request, इसका कोई registration process है? If people can subscribe to this or write for that. yeah, there's a link I'll share with you. Just मैं अभी share it आपको with me. जैसे मैं ये वीडियो लगाऊंगा उसके साथ I'll put up the link as well. So Perfect. wonderful. God bless you. Thank you. अपना ख्याल Thank you, रखें. sir. खुश All the रहें. best. Thank you. Bye bye. Allah Hafiz. Allah Hafiz.